আগত সমস্ত ভক্তবৃন্দদের জানাই বৈষ্ণবীয় প্রণাম ও সুস্বাগতম। আমাদের মাঝে কৃপাপূর্বক উপস্থিত আছেন ইসকন মুম্বাই জুহ মন্দির হতে আগত পূজ্যপাদ শ্রীপাদ শীতলাঙ্গা গৌরাঙ্গ প্রভু। 1973 সালে উনি ইসকনের সাথে যুক্ত হন এবং আরও উপস্থিত আছেন পূজ্যপাদ সেবা অতুল দাস ব্রহ্মচারী প্রভু জুহ মন্দিরে। আমরা প্রভুপাদের যে কৃপাই এবং গুরু মহারাজের অশেষ কৃপাই যে প্রভুদের আমরা এখানে পেয়েছি, আপনারা হয়তো অবগত আছেন। তো প্রভুরা হচ্ছে যেখানেই যে ইসকনের বিগ্রহের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়, নতুন বিগ্রহ নতুন মন্দির উদ্বোধন হয়, প্রভুরা হচ্ছে ডিটি মিনিস্ট্রিতে প্রভুদের সেবা এবং সারা বিশ্বে বলবো না, হয়তো ভারত বাংলাদেশ বা এই এশিয়ার মধ্যেই এবং এশিয়ার বাইরেও যে প্রভুরা যে বিগ্রহের যে প্রাণ প্রতিষ্ঠার যে গুরুত্বপূর্ণ সেবা যে গুরু মহারাজের গুরুবর্গদের কৃপায় ওনারা সেই সেবাটুকু সম্পাদন করেন। তারাই ধারাবাহিকতায় যে কী করে আমরা বিগ্রহ সেবা স্ট্যান্ডার্ড আমরা মেনটেন করবো, সেজন্য প্রভুরা কৃপা করবে চট্টগ্রামে আমাদেরকে ধন্য করেছেন ওনারা এসে। তো আজকে প্রভুরা আমাদেরকে এখন বিগ্রহ সেবার উপর কিছু টিপস, এটা তো অনেক বিশাল বিষয়, কিন্তু কিছু টিপস উনি আমাদেরকে দেবেন। তো আমি ভক্তদেরকে অনুরোধ করব যে আপনারা কালকে সকালে প্রভু অর্চনেও দেখবেন, প্রভু বলল আমাকে, এবং কালকে সকালে ভাগবতম ক্লাস প্রদান করবেন। তা আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ করব আপনারা সকলেই কৃপাপূর্বক যে প্রভুদের এই সময়টাও কিন্তু অত্যন্ত মূল্যবান। ওনারা যে শুধু এখানে নয়, সারা বাংলাদেশ বা চট্টগ্রাম জোনের মধ্যে আমাদের প্রথমে যেই মন্দিরগুলো রয়েছে, আজকে চিন্মবাবু বলল হয়তো সম্ভবত 24, 25, 26 দিকে হয়তো দামে 2-3 দিন আরও একটা সেমিনার দিতে পারে। তাই আমি আমাদের মন্দিরে যারা ভক্তরবৃন্দরা রয়েছেন, যারা শ্রী রামানন্দ পণ্ডিতের সবাই যুক্ত রয়েছেন, আপনাদের কাছে প্রার্থনা করব আপনারা সকলে প্রভুদের শ্রীমুখ থেকে যেই বিষয়গুলো বের হবে আপনারা সেগুলো লিখে রাখুন, যাতে সুন্দর মতো আপনারা বিগ্রহ সবাই মনোনিবেশ করতে পারেন। তো আমি আমাদের মন্দিরের ভক্তদের অনুরোধ করব আমরা প্রভুদের যাতে সুন্দর মতো উপস্থাপনা এবং ওদের আগমন উপলক্ষে আমরা ওনাদেরকে 3 বার হরিনামের মাধ্যমে আমরা আমাদের স্বাগত করব, সবাই মিলে একসাথে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं, श्रीगुरून् वैष्णवांश्च, श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च, श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं।
नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। Myself and okay. So myself and His Grace Sevatullah Prabhu. You should have the mic. Yeah. You give him the mic. No problem. इनका आवाज आएगा. That's okay. हिंदी बोलेगा. Hindi almost of the people understanding. हिंदी हिंदी भी मेरा कच्चा है, पक्का नहीं है। ओके, मैं कोशिश करूँगा। और मुझे एक स्पीड ब्रेकर को आया तो प्रभु जी है सहायता करने के लिए, ठीक है। रोड हम हमारे हिंदी में स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, एक वचन, बहुवचन ये सब मिक्स हो आप सब लोग समझ लेना हमारा। आप सब लोग परमहंस है तो मैं हिंदी में बात कर सकता हूँ। इसका मतलब क्या है? हंस पक्षी क्या करता है, क्या करती है? वो दूध और पानी मिला के देने से सिर्फ दूध को वो लेती है, पानी को उधर ही छोड़ती है। ऐसा मेरा गलती भाषा को आप छोड़ दीजिए और मेरा मैसेज को आप स्वीकार कीजिए, ठीक है? In any case, you want to make anything in English, you can say that. Yes, So and he will yeah. answer. The Savior. Yes, yes. हमारा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है। सो मैं और सेवतुल्ला प्रभु इतने दूर आए हैं और हमको बहुत बहुत आनंद है आप सबको देख के, ठीक है ना? हमको बांग्लादेश हमेशा पसंद है क्योंकि ये मेरा 14 टाइम है। हम पिछले बार आया था तारागंज रंगपुर में प्रतिष्ठा किया भक्ति प्रियन गदाधर महाराज के साथ। हमारा टीम को लेके आया था, उधर किया था। भक्ति पुरुषोत्तम भी महाराज भी आए थे। और पहला बार आया था वो टाइम पे नंदन कानन को आया नहीं, मगर चिटागांव प्रवर्तक मंदिर में जाके आया जगत गुरु के साथ। चारू चंद्र प्रभु, जगत गुरु, माधव मुरारी, ज्योतिषा, ये सब हमारा बहुत दोस्त है। वो लोग जगत गुरु मेरे को घुमाया थोड़ा। वो टाइम पे गुरु महाराज ने कुछ बोल के गया था, मेरे बोल के भेजा था, ये 3-4 मंदिर है, आप जाके थोड़ा देख के आओ, मेरे को रिपोर्ट दे दो, ढाका का, तारागंज, रंगपुर का, ऐसा। तो इसलिए वो टाइम पे से आया हूँ। एक बात जब आया मैं इधर भक्ति पुरुषोत्तम महाराज को मिला था मायापुर से आने के ना, वो एक बात बोला था मेरे को। जब इधर आया, आने के बाद 10 दिन रहा और सेकंड टाइम में भी आया,
अभी मेरे को वो बात समझ गया और अनुभव में आया। वो जो बोला था मेरे को भक्ति पुरुषोत्तम महाराज, वो बात सही है। क्या बोला? वो क्या बात है? पता था, मैं गुरु महाराज का व्यास पूजा होता है, बड़ा बढ़िया से होता है जुहू मंदिर में। बहुत सारे अनेक शिष्य लोग, हमारा गॉड ब्रदर से उधर बहुत अच्छे से बड़ा से होता है। तो उधर व्यास पूजा में भी मैं पूरा वो साल पूरा बांग्लादेश के ही बताया, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बांग्लादेश के बारे में मालूम नहीं था, इंक्लूडिंग मी। मेरे को भी उतना मालूम नहीं था। जब आके देखा, अनुभव किया, तब वो बात सही मेरे को लगा। उसमें से वो बात ये था, भक्ति पुरुषोत्तम महाराज, क्योंकि मैं डीटी वर्शिप मिनिस्ट्री से आ रहा हूँ, मेरा हाथ में एक रूल बुक रहेगा। रूल बुक समझते हैं ना, नियम का पालन, ये कर रहे हैं, ये करना है, ये नहीं करना है, टिक मार करो, रंग ये नहीं, ऐसा। तो भक्ति पुरुषोत्तम महाराज ये बोला, सेवतुल्ला, आप जब बांग्लादेश जाता है, उधर ज्यादा विधि विधान नियम वो मत देखना, उन लोगों को हृदय देखो। ये दिल, हृदय बहुत सरल है। वो लोग स्वाभाविक से महाप्रभु का भक्त लोग हैं, बहुत सरल है, बहुत स्वीट, बहुत मीठा से। ये बोल के जब इधर आया तो मेरे को वैसे ही लगा, क्योंकि विधि नियम ठीक है एक तरीके से, मगर विधि नियम के ऊपर प्रेम होता है। वो प्रेम, स्वाभाविक प्रेम अलग है, दिखाने वाला प्रेम अलग है। ये फिल्म में दिखावट प्रेम है, ये रिप्रेजेंटेटिव, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आता है ना, आपको सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, वो लोग दिखाते हैं प्रेम, वो दिखावट प्रेम है। वो लोग सब उसका पीछे कारण रहता है, मगर असली प्रेम में कुछ कारण नहीं रहता है, और वो स्वाभाविक है। आपको मालूम पड़ेगा जब कोई बात कर रहे, कुछ खिला रहे, अच्छे से मालूम पड़ेगा ये एक्चुअली प्रेम से खिला रहे, प्रेम से बात कर रहे, या प्रेम से व्यवहार कर रहे, या आर्टिफिशियल है, ड्रामा कर रहे, नाटक। मगर हमको ये लगा, ये नहीं कि आप लोगों को इधर हूँ मैं, आपको तारीफ करना है, ऐसा नहीं। सच की बात बताए तो मैं देखा एक्चुअली बहुत बांग्लादेश का डिवोटी लोग, पूरा यात्रा जिधर जिधर गया हूँ, सब लोग बहुत सरल है और बहुत प्रेम से व्यवहार करते हैं, बहुत स्वीट। अरे मैं ये बात एक्चुअली गुरु महाराज को भी बताया। वो पूछा कैसे था, मैं बोला सब बताया। बोला कि हमको प्रतिष्ठा करना है, उधर मंदिर प्रतिष्ठा करना है, ढाका मंदिर का, ये सब। वो बोला, तब मैं बोला मैं आऊँगा, मेरे को कुछ दक्षिणा नहीं चाहिए, मैं आके करूँगा। खाली मेरे को, मैं बहुत सुना हूँ महाप्रभु का पार्षद लोगों का पास टाइम, लीला स्थल बहुत है, मैं उसको देखना चाहता हूँ। वो टाइम पे मैं बोला था 4 साल पहले। गुरु महाराज बोला मैं उसको भी दिखाऊंगा, और एक आपको एक खिलाऊंगा, गोविंद भोग खिलाऊंगा। आप उसका स्वीट राइस खाएंगे तो आप पागल हो जाएगा, बहुत पागल हो जाएगा। गोविंद भोग खिलाऊंगा आपको और सारी जगह दिखाऊंगा। गुरु महाराज का कृपा से उनके शिष्य लोग मेरे को बहुत सारे लेके गया भी, गोविंद भोग भी खाया, सब हुआ है। मगर आप सबको मिलके अच्छा लगता है, हमको सीखने को मिलता है कैसे सरल रहना, क्योंकि हम शहर वाले हैं, शहर में रहते हैं, बम्बई जैसे शहर में रहते हैं। हम शहर में जाते हैं, शहर में रहते हैं, शहर वासियों से रहता है। ये सरलता है ना, वो खाली इधर मिलता है। ऐसा आप लोगों का भक्तों से मिल के देखने से, आपसे हम
शिक्षा मिलता है सरलता कैसे है। हरे कृष्ण। सो हमको बहुत आनंद है आपको मीट करने से। मैं यही बोल के लेके आया इनको। मैं बोला आप बांग्लादेश चलो, उधर देखो, आपको एक्चुअली अच्छा लगेगा। और मुझको बहुत बहुत आनंद मिला। ओ प्रभु जी क्या बोला, वो 100% नहीं है, 200% सही है। हम लोग इस्कॉन से जोड़ा है। श्रीला प्रभुपादा हमारा आचार्य है। तो श्रीला प्रभुपाद के कृपा से, अनुग्रह से हम लोगों को बहुत कुछ मिला। हमको और ज्यादा मिलने चाहिए तो हम लोग और ज्यादा सीरियस, intensely, we have to intensely follow the instructions given by Srila Prabhupada to get more and more happiness. আরো আনন্দ পাওয়ার জন্য আমাদেরকে নিবিড়ভাবে শ্রীল প্রভুপাদের নির্দেশ অনুসরণ করতে হবে। It is very nice that we have natural tendency to serve Mahaprabhu, to serve Gaur-Nitai, and to serve the deities. It is very natural. তো গৌরনিতাইকে সেবা করার যে আমাদের মধ্যে সহজাত প্রবৃত্তি রয়েছে এবং গৌরনিতার বিগ্রহকেও সেবা করার আমাদের মধ্যে সেই সহজাত প্রবৃত্তিটি রয়েছে। So it is very nice. এটি খুবই সুন্দর একটি ব্যাপার। But if we really ignore the rules and regulations, যদি আমরা বিধিনিষেধ যদি লঙ্ঘন করি, very very soon this nice bhava that we are experiencing, it can turn into krutaka, it can turn into what is that, sahajiya. যদি আমরা বিধিনিষেধ সহকারে যদি বিগ্রহ সেবা না করি, ওখান থেকে যে ফলটা লাভ করব সেটি সহজেতে পরিণত হতে পারে। That is a very big danger. এটি খুবই মহাবিপদ, একটি মহাবিপদ। That is really a very very big danger. এটা আসলে একটি মহাবিপদের ব্যাপার। It's a big danger because এটি মহাবিপদ কেননা Bhaktivinoda Thakur had to fight so much to re-establish Gaudiya Vaishnava Tattva. ভক্তিবিনোদ ঠাকুর সংগ্রাম করে গেছেন গৌড়ীয় বৈষ্ণব তত্ত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য। And what is the reason? Because so many people, they stopped following all rules and regulations and only simply started talking about bhava, prema, bhakti. এর কারণ হচ্ছে অনেক লোক ভক্তি সম্পর্কে ভুলে গিয়েছে, আর ভক্তিকে ভুলে গিয়ে তারা ভাবকে অবলম্বন করতে শুরু করেছিল। So it is very important that these rules and regulations, if we follow, it will protect us and it will enhance our bhakti. তো এই জন্য বিধিনিষেধের মাধ্যমে বিগ্রহ সেবা করা এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, কেননা এর মাধ্যমে আমরা আমাদের ভক্তি বৃদ্ধি পাই, বর্ধিত হয়। So I want to ask you a question now. আমি আপনাদেরকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে চাই। What is the benefit of following rules and regulations nicely in deity worship? বিগ্রহ পূজা অর্চনার ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ পালনের মাধ্যমে আমরা কি সুফল লাভ করতে পারি? মানে বিগ্রহ অর্চনার মাধ্যমে আমরা কি সুফল লাভ করতে পারি? বিধিনিষেধ পালন করার মাধ্যমে আমাদের ভক্তিতে রতি জন্মাবে। So he said after following the rules and regulations our intensity of bhakti will be increased. Haribo! Oye, oye.
Okay, I want to ask one more question. If we don't follow the rules and regulations nicely, and we just do whatever seva we want only with our own mind and whatever our heart says, what is the danger? আমরা যদি বিধিনিষেধ না মেনে যদি মানে মন গড়া ভাবে সবকিছু করে যাই, তাহলে এক্ষেত্রে কি বিপদের আশঙ্কা রয়েছে? সহজিয়া। हरि बोल, perfect answer. So सबको मालूम हो गया ना अभी विधि निषेध क्यों चाहिए? मगर हम इस्कॉन में विधि निषेध बहुत कम में रखा है, मिनिमम में रखा है। इसका मतलब वो मिनिमम को हम लोग और मिनिमम करने के लिए कोशिश मत करना है। ठीक है, ठीक है। नहीं मुझको मालूम है आपको समझ हो गया, मगर फिर भी मैं और एक बार इनकी द्वारा बोल रहा हूं, क्योंकि वो और ज्यादा सीमेंट जैसा हमारा हृदय में उनको समझ ये आता है, ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आपका भाषा में बोले तो और अच्छे से समझ जाएगा। वो खाली वो उसको बोलेगा अब बांग्ला में बोल, नहीं तो हिंदी ही चलते हैं। তো কঠোর বিধিনিষেধ অলরেডি শাস্ত্রে রয়েছে, কিন্তু এই কঠোর বিধিনিষেধ বা অনেক বিধিনিষেধের চেয়েও ইসকনে অনেক কম বিধিনিষেধ রয়েছে, কিন্তু এই কম বিধিনিষেধের চেয়ে আরো নিচু নেমে নামা যাবে না কখনো। ओके सो इसलिए एक विधि निषेधों का हम लोग पालन करना चाहिए। इस लाइन में, इस रूट में, इस मार्ग में जाने के पहला मैं थोड़ा अलग रूट में जाना चाहता हूं। विधि निषेध क्या है और हम क्यों पालन करना है, हम लोग अभी अंडरस्टूड, समझ लिया, अभी हम लोग समझ लिया। मगर उसके पहले और बहुत फाउंडेशन जैसा, फाउंडेशन भित्ति जैसा एक विषय में बोलने के लिए कोशिश करूंगा। इतना बड़ा बिल्डिंग आया है, बिना फाउंडेशन, बिना भित्ति आया है? नहीं। भित्ति करने के लिए कितना टाइम हम लोग लिया, और ये 3-4 फ्लोर आ गया, उसको कितना टाइम लिया हम लोग? भित्ति के लिए बहुत ज्यादा टाइम चाहिए, 70% टाइम। ये रेस करने के लिए सिर्फ 30%, ठीक है ना? सो इसका मतलब क्या है, भित्ति इतना महत्वपूर्ण है। ओके, सो हम लोग ये युग क्या है? किसी को डाउट है, शक है? ये कलयुग नहीं है, ये कलयुग। इस कलयुग में कलयुग का धर्म क्या है? नाम संकीर्तन, हरि नाम संकीर्तन, ठीक है ना? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति षोडशकं नाम्नां कलि कल्मष नाशनम् नतरो पर उपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। ये शास्त्र वाक्य है। कली का पूरा कल्मषों को ये सिर्फ 16 पद का महामंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र, सब कल्मष को क्या कर सकते हैं? नाश कर सकते हैं, विनाश हो जाएगा। हम नहीं, कल्मष। सो कलियुग धर्म हरिनाम संकीर्तन। मगर हम लोग इस्कॉन में इतना बहुत विधि निषेध नहीं है,
बहुत कम है, इसको और कम कराने के लिए हम लोग मत सोचना। किस बारे में? विग्रह का सेवा बारे में। विग्रह सेवा क्यों चाहिए कलयुग में? क्योंकि कलयुग धर्म वही नहीं है, वो नहीं है। Why do we require deity worship at all in Kali Yuga? Because deity worship is not the Yuga dharma for Kali. বিগ্রহ অর্চনা কলিযুগের ধর্ম নয়, তো সেই ক্ষেত্রে Why do we require Vigraha Seva in Kali Yuga? কেন কলিযুগে তাহলে বিগ্রহ অর্চনা প্রয়োজন? নাম বিগ্রহ স্বরূপ দুটোই একরূপ। নাম বিগ্রহ স্বরূপ দুটি একরূপ। নাম নেম ডিটি এন্ড স্বরূপ Form. is form. So from they are all same. They are all same. Yes. इसलिए मैं पूछ रहा हूं आपको, दिस इज द प्रिसाइसली द रीजन व्हाई आई एम आस्किंग। नाम ले लो ना, क्यों चाहिए विग्रह कलियुग में? Yes, আপনারা সবাই নাম করতে পারেন, হরি নাম করতে পারেন, তো কেন বিগ্রহ অর্চন প্রয়োজন? नामनी अभिन्नत्व। নাম এবং নামই অভিন্ন। सो विग्रह सेवा में ये करो, ये मत करो। বিগ্রহ সেবার इसी टाइम में ये करना, इतना भोग लेना, इतना लोग भगवान को चढ़ाना, ये सब है। क्यों चाहिए? और बहुत मुख्य प्रश्न है, ये विग्रह सेवा करने के लिए राधा कृष्ण विग्रह है, तो श्रीला प्रभुपाद जी का आदेश है 10 to 12 डिवोटीज चाहिए। एक मैनेजर सोच सकता है, अरे यार 10 to 12 डिवोटीज क्यों है, सिर्फ एक आरती करने के लिए, चलो हम लोग। सो विग्रह क्यों लाना है और प्रभुपाद जी का आदेश को क्यों तोड़ना है, क्यों अपराध को आह्वान करना है, क्यों हम लोग सिर्फ उसको छोड़ के सिर्फ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, क्यों हम लोग संकीर्तन नहीं कर रहे हैं? ये वैलिड क्वेश्चन है। এটা কি বৈধ प्रश्न? यथार्थ प्रश्न है। हाँ, किसी के पास इसको इस प्रश्न का उत्तर है? কারো কাছে এটা উত্তর আছে? इसका मतलब हम लोग डीटी वर्शिप कर रहे हैं, मगर हमको मालूम नहीं है क्यों कर रहे हैं। तो यही है फाउंडेशन। मैं सही बोला या गलत बोला? देखिए, इतना बड़ा बिल्डिंग हम लोग बनाए और ये बिल्डिंग को थोड़ा विधि विधान से हवन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, शुद्धि करेंगे, हम सब लोग इसके अंदर आएंगे, इसमें रहेंगे। भगवान को हम लोग इधर स्थापन नहीं किया तो उस समय कितने लोग मंगलारती समय में हाजिर होगा? सोचिए। एक ठीक प्रश्न है। अभी जगन्नाथ जी है हमारे साथ, इतना बड़ा श्रृंगार कर रहे हैं आप लोग, सुबह कितने लोग आएगा मंगलारती के लिए? 10 आदमी, 15 आदमी, 20 आदमी, बस। जगन्नाथपुरी नो हियर कितने लोग? डीटी है, डीटी स्थापित हुआ है, हम सबको डीटी चाहिए बोल के हम लोग आह्वान किए हैं भगवान को।
और प्रभुपाद जी का आदेश है, गुरु जी का, हमारा गुरु महाराज का आदेश है मंगल आरती करना। फिर भी इतना कम लोग मंगल आरती समय में हाजिर है, हाँ या नहीं? मगर अभी सोचो, इस बिल्डिंग में वो उस समय मंदिर नहीं है, क्योंकि भगवान नहीं है तो मंदिर कैसा होगा वो? हम लोग सिर्फ जप करना, वो तो आदेश है। कब जप करना हम लोग? ना, एनी टाइम नहीं है, वो निर्दिष्ट समय है ना, ब्रह्म मुहूर्त समय में वो हमारा वचन दिया ना गुरु महाराज का, उस गिनने का उस समय करना है। We have to do our committed japa in the ब्रह्म मुहूर्ता। গুরুদেবের কাছে যে আমরা হরিনাম করার জন্য প্রতিজ্ঞা করেছি সেটি করা উচিত ব্রাহ্ম মুহূর্তে। उसके बाद कीर्तनीय सदा हरि। এটার পরেই হচ্ছে কীর্তনের সময়। हाँ, ओके। सो एक दिन एक आदमी आएगा, इनिशियल बिगिनिंग स्टेजेस में बहुत सबको उत्साहित है ना, बहुत ज्यादा उत्साह है। सो सब लोग आएगा, डीटी नहीं है फिर भी आएगा, सब इधर एक आदमी उधर एक आदमी, सब बैठ के हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम, ऐसा जप करेगा। कितने दिन? एक हफ्ता, 2 हफ्ता। उसके बाद प्रभु जी के पास जाके एक बहुत बुद्धिमान भक्त बोलेगा, प्रभु जी इधर भी जप कर सकता है, आश्रम में भी जप कर सकता है, थोड़ा मुझको ये ठंड हवा आएगा आता है ना, इसलिए it does not suit me, therefore why don't I do japa in my ashram? बोल सकता है ना? মানে এখানে আমরা মানে এভাবে জব করতে 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 এটা আমার জন্য ভালো লাগছে না, তো কেন আমি এখানে করব? আমি অন্য একটা আশ্রমে গিয়ে করব। আশ্রমে গিয়ে করব। सो प्रभु जी कुछ बोल सकता है, डीडी नहीं है, और नाम में अभिन्नत्व है। तो इधर नाम लेने से भी भगवान का कृपा मिल जाएगा, उधर नाम लेने से भी भगवान का कृपा मिल जाएगा। सो प्रभु जी पूरा कंट्रोल लूज हो जाता है। सो 1 महीने के बाद प्रभु जी भी नहीं आएगा। और एक 4 दीवार के अंदर बैठ के और 4 हफ्ते करेगा हम लोग। मैं जैसा वक्ता 4 हफ्ते करेगा, 1 महीने करेगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। नहा के उधर मेरा गद्दी है, बेड को क्या बोलते हैं? पिछना। उधर मेरा पिछना है, और पिछना के ऊपर मैं नहीं बैठूंगा, बाहर जाऊंगा, नहाऊंगा, तिलक डालूंगा, अच्छे से फ्रेश क्लॉथ्स पहनूंगा, आसन पर बैठ के उधर अंदर मैं करूंगा। 1-2 दिन, 1-2 हफ्ते करूंगा। उसके बाद मैं सोचेगा, अरे ये मंदिर हॉल है, हमारा कांग्रेगेशन हॉल, वहां से मैं इधर आया हूं, इधर का मतलब मेरा रूम आश्रम का आया हूं। ये इस 10x20 रूम में वहां बैठने से और मेरा बिछाना के ऊपर बैठने से क्या फर्क होता है? बोल सकता है नहीं? बोलेगा या नहीं? बोलेगा, जरूर बोलेगा। सो और 1-2-3 हफ्ते वो बिछाना के ऊपर बैठ के हरे कृष्ण ऐसा स्ट्रेट, हरे कृष्ण 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 चलेगा। उसके बाद मेरे जैसा बुद्धिमान डिवोटी सोचेगा, ऐसा बैठने से या थोड़ा ऐसा आराम करने से क्या होता है, इसमें फर्क क्या है?
कुछ फर्क है या ऐसा करने से नाम बाहर नहीं आएगा? आएगा और थोड़ा ज्यादा अच्छा से आएगा, क्योंकि हम लोग बहुत कंफर्टेबल है, ठीक है ना? और उसके बाद वो सोचेगा मेरा जैसा, आप जैसा डिवोटी नहीं है, आप लोग बहुत अच्छी भक्त लोग है, मेरा जैसी सोचेगा, अरे मैं क्यों उठना, क्यों उधर तक जाना है? एक नाम, कृष्णा का नाम में कितना शक्ति है, तो एक भक्त या एक मनुष्य कितना सोच सकता है सिंपल पाप करने के लिए, वो सब चला जाएगा। एक जन्म का नहीं, अनेक अनेक अनंत कोटि जन्म का पाप सिर्फ एक नाम में शक्ति है। इसलिए क्या, क्यों मैं इस समय में उठना है और वहां जाना है और ठंडा पानी में नहाना है? मैं ऐसे ही आराम से आई विल लाई डाउन, आई विल स्लीप, सो जाए। हाँ, मैं सो जाऊंगा। उस समय अलार्म नहीं ना, वो अलार्म आने के बाद मैं तुरंत ऐसा करके, माला क्यों चाहिए? महाप्रभु ने क्या बोला? कीर्तनिया उसको माला क्यों चाहिए? सो टेम्पल हॉल आने का गोविंदा गोविंदा हो गया, और आश्रम वहां से यहाँ आया, और अभी माला बैग भी माया हो गया। और मैं सोच रहा हूं हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सो ऐसा डिग्रेडेशन हो जाएगा। पूरा हमारा सारे क्या क्या हम लोग लाने के लिए, लेने के लिए आध्यात्मिक जीवन को आए हैं, ये सब डिफीट हो जाएगा। Everything will get defeated. For whatever purpose we came for, taking spiritual life, we came to spiritual life, everything will go, because from Sattva Guna we will come down to Rajoguna and then we will go to Tamoguna. আমরা আধ্যাত্মিক জীবনের যে উদ্দেশ্যে এসেছি সেই উদ্দেশ্য বিনষ্ট হয়ে একদম সত্যগুণ থেকে প্রথমে রজগুণে পতিত হবে এবং রজগুণ থেকে তমগুণে অবশেষে পতিত হবে। We came to ISKCON because we were in Tamoguna, and nice devotees like Prabhuji and others, they came and preached to us. Hey, क्या कर रहा है? क्या वेस्ट कर रहा है? व्यर्थ हो रहा है? हाँ, chant Hare Krishna, मंदिर हो, दर्शन कर. So that man was not getting up before 8 o'clock. He started getting up at 4 o'clock. So he was in Tamoguna. He came to Rajoguna and Sattva-guna. যদি মানে বিগ্রহ থাকে তখন সেই তমগুণের ব্যক্তি और मेरे में कलर नहीं पड़े नहीं गए সেই তমগুণের ব্যক্তি যে কিনা সকাল 8টা বাজে উঠতো, সে 4টা বাজে উঠবে, 4টা উঠতে শুরু করবে, তো আস্তে আস্তে তমগুণ থেকে রজগুণে, রজগুণ থেকে অবশ্যই সত্যগুণে উপনীত হবে। But because there is no deity, people who are already in Sattva-guna, now they are going into Tamoguna and sleeping in the ashram. যেহেতু বিগ্রহ নেই, যদি বিগ্রহ অর্চনা করা না হয়, তো যে ব্যক্তি সত্যগুণে আছে সে সত্যগুণ থেকে রজগুণ, রজগুণ থেকে তমগুণে পতিত হতে পারে। So now everybody understands? So deity required या नहीं required? So deity required है तो उसके साथ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी आएगा, उसको हम लोग एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। मालूम पड़ा? अभी एक छोटा एग्जाम्पल, मुझको एक स्त्री का संपर्क चाहिए, वो स्त्री का संबंध वो एक भूखा है, देह का भूखा है, करेक्ट है ना? हाँ, कोई उपवास करेगा, कितने तक उपवास करेगा? वो लाल रंग में रहेगा। वो उपवास नहीं करेगा, वो
सफेद हो जाएगा। ठीक है। सो मुझको एक स्त्री संबंध चाहिए तो इसको एक विधि विधान है या नहीं? उस विधान का क्या बोलते हैं? विवाह यज्ञ। वो विवाह यज्ञ में ऐसा नहीं है मैं मुझको मन में कब आता है उस समय मैं गर जाऊंगा, उस समय मेरा मन नहीं है मैं बाहर रहूंगा, ऐसा नहीं है। सो रेस्पॉन्सिबिलिटी आता है, थोड़ा उपयोग है तो उसका पीछे थोड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगा। वो रेस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग एक्सेप्ट करना ही चाहिए। উপযুক্ত মানে কোনো কিছু গ্রহণ করলে সেটার একটা দায়িত্ব থাকে, ওই দায়িত্বটা আমাদের অবশ্যই পালন করতে হবে, এটা ছাড় দেওয়া যাবে না। So it's very, very important that these simple rules and regulations that are given by Prabhupada, we have to follow. Okay. So coming back to the straight question, why we do deity worship in Kali Yuga? The answer is we have to raise our gunas from tamoguna to rajoguna to sattva-guna. And then when we start chanting Hare Krishna Mahamantra in sattva-guna, then we go to Shuddha Sattva. কলিযুগে আমরা বিগ্রহ অর্চনা করি এই জন্যই যাতে করে আমরা তমগুণ থেকে রজগুণে এবং রজগুণ থেকে সত্যগুণে উপনীত হতে পারি, এবং সত্যগুণে উপনীত হলে তখন আমরা হরিনাম জপ করতে পারবো। আর হরিনাম জপ করতে থাকলে অতঃপর আমরা শুদ্ধ সত্য স্তরে অধিষ্ঠিত হতে পারবো। In other words, we require the deities as a support system to follow the real original Yuga Dharma chanting of the Hare Krishna Mahamantra. এই জন্য এক্ষেত্রে আমরা যদি সঠিকভাবে কলিযুগের যোগধর্ম হরিনাম সংকীর্তন করতে চাই তাহলে এই বিগ্রহ আমাদেরকে সেই সুযোগটি প্রদান করবে। So this is a very, very important. Another thing is, Prabhupada mentions in the 7th canto, in the 4th chapter, verses number 23-24, Shravanam Kirtanam Vishnu Smaranam Archanam. उस परपोर्ट में शिला प्रभुपाद बहुत कुछ लिखा है, अबाउट 5 पेजेस लिखा है सिर्फ अर्चनम का बारे में। हर ब्राह्मण दीक्षित नहीं, हर इस्कॉन बात वो परपोर्ट को बहुत अच्छा से पढ़ना है और उसके बारे में स्मरण करना है, क्योंकि उधर बहुत अनेक कारणों ने श्रीला प्रभुपाद जी ने दिया है। किस चीज के लिए? हम लोग क्यों डीटी वर्शिप करना। उसमें एक पॉइंट है, हम लोग आत्मा है, हम सब लोग आत्मा है ना। आत्मा भौतिक विषय, भौतिक वस्तु या आध्यात्मिक वस्तु? आध्यात्मिक वस्तु। ये आध्यात्मिक वस्तु को कुछ कलमश घुस सकता है? नहीं। मगर ये भौतिक शरीर मेरा ऊपर है, मैं आत्मा, मैं इस शरीर के अंदर रहता हूं। ये शरीर बहुत कलमश को it is susceptible to contamination. This is the exact word used by Prabhupada. इसका मतलब है ये शरीर भौतिक शरीर है तो वो शरीर कलमश और अपने आप कलमश हो जाती है। वो कलमश से हरिनाम संकीर्तन हम लोग नहीं कर सकते हैं। ये पवित्रता चाहिए, प्यूरिटी चाहिए। वो प्यूरिटी हमको ये विधि विधान फॉलो करने से प्यूरिफिकेशन आता है। मैं और एक बार बोलूंगा, ये मेरा शरीर है, ये शरीर आध्यात्मिक वस्तु नहीं है, ये भौतिक वस्तु।
एक भौतिक वस्तु का गुण है कलमश को आह्वान करता है, अट्रैक्ट करता है, आकर्षण करता है, कलमशों को आकर्षण करता है। मैं डीटी वर्शिप नहीं किया तो मेरा देह क्या करेगा, और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा कलमश को आकर्षण करके 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 ये पूरा मेरा ऊपर आके बैठता है। इस कलमश देह से मैं भगवान का नाम लेने का बहुत मुश्किल होता है। इसलिए डीटी वर्शिप करने से एक कलमश जाता है। कैसा जाता है? वो विधि विधान पालन करने से ऑटोमेटिकली तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सत्वगुण जाएगा। उस समय हमारा कलमश ऑटोमेटिकली चल जाएगा। ये सत्वगुण में हम लोग जप करने से हमको हरे कृष्ण महामंत्र जप का फायदा हम लोग उठ सकते हैं। इज इट क्लियर? किसी को शक है तो इसमें आप लोग बोलना। किसी को शक है? नहीं। ओके। सो एक कलमश निकालने के लिए विधि विधान अनुगुण से विग्रह आराधना अर्चना करना चाहिए। इस पद्धति को एक नाम दिया गया है। वो नाम क्या है? पंचरात्र विधि। पंचरात्रि का विधि का मतलब विधि विधान से राधा कृष्ण भगवान को राधा कृष्ण भगवान मत समझना। राधा कृष्ण विग्रहों को लक्ष्मी नारायण समझ के बहुत विनम्रता से, बहुत रेस्पेक्ट से, श्रद्धा सम्मान, बहुत सम्मान से विग्रह सेवा करने से एक कलमश चल जाता है। इसलिए प्रभुपाद जी ने बहुत बार, एटलीस्ट 3-4 बार इसका ये बोला है, ये लिखा है। राधा कृष्ण विग्रह हम लोग प्रतिष्ठित करते हैं, मगर हम लोग कैसा देखभाल करना राधा कृष्ण विग्रह को? लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण का मतलब सम्मान था। जज के साथ हम लोग कोर्ट में कैसा है आप, वो हमारा शिष्य हो सकता है। ये गुरु भी कोर्ट के अंदर जाके कैसा है जज, ऐसा नहीं बोल सकता है। हाँ या नहीं? मगर वही जज, वो जज का सीट के बाहर आ गया, गुरु महाराज है तो साष्टांग प्रणाम करेगा, ठीक है ना? हाँ। मगर वो सीट में उनको इतना अथॉरिटी और पावर है, सब उनको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। ऐसा हम लोग, हमारे हृदय में भाव है, मैं एक पीकॉक हूं या मैं कृष्ण भगवान का गोप बालक फ्रेंड हूं, ऐसा अंदर जाके ऐसा करा सकते हैं क्या? नहीं। टच करने के लिए पहला 10 बार क्लीनिंग करना चाहिए। और टच करने के पहले सोचना है मैं क्यों टच करना है या नहीं, बिना टचिंग कुछ कर सकता है मैं, ये सब सोचना है। आपको यू आर एबल टू अंडरस्टैंड नो? सबको समझ आ रहा है ना? हाँ, क्योंकि आप जाए
क्योंकि आपका रिएक्शन क्या है मुझको देखने का लाइट नहीं है ना, इसलिए। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण अंश है, इसको हम लोग कभी भी मत भूलना। भगवान को अप्रोच करने का, भगवान के पास जाने के पहले क्या क्या हमारा गुरुओं ने, क्या क्या हमारा आचार्यों ने, क्या क्या हमारा गौड़ीय वैष्णव परंपरा, ब्रह्म मत गौड़ीय वैष्णव परंपरा में क्या है विधि विधान, उसको पालन करना है या एडजस्ट कर सकते हैं? पालन करना है। वेरी गुड, पालन करना है। मगर मैं ऑलरेडी बोल दिया, वो उडुपी या श्रीरंगम या तिरुपति, वहां जाने से आपको मालूम होगा कितना विधि विधान है। ऐसा विधि विधान हमारा गौड़ीय वैष्णव परंपरा में नहीं दिया। इसलिए 35% मार्क्स पासिंग है। क्या है? 35, 100 को 35 मार्क मिनिमम लाना चाहिए। वो 35 विदाउट, इंस्टेड ऑफ 35 25 मार्क्स, 25 मार्क लेने से पास होगा सर। हम लोग गुरु महाराज के पास मत जाना और गुरु महाराज मैं 25 मार्क्स लिया, थोड़ा मुझको पास कर दो, पास कर दो, पास कर दो। वो नहीं पास करेगा। 35 आ गया वो पास करेगा, क्योंकि उनकी गुरु श्रीला प्रभुपाद वो परमिशन दिया है। 35 मार्क कुछ आपका डिसाइपल को आया तो उनको पास करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर 34 मार्क्स आना मुश्किल है, 25 मार्क्स आना मुश्किल है। ठीक है, सो हम लोग मिनिमम का मिनिमम, कम से कम हमारा ग्रंथों में क्या लिखा है वो हम लोग पालन करना है। इस विधि विधानों को भगवत सेवा करने का मार्ग को पांचरात्रि का मार्ग बोलता है, पांचरात्रि का विधि बोलता है। दूसरा विधि है, वो दूसरा विधि क्या है? भागवत विधि। सो भागवत विधि है, पांचरात्रिक विधि है। पांचरात्रिक विधि ऑल्टर के अंदर, ऑल्टर के बाहर भागवत विधि। मगर हर आदमी, हर भक्त बिना पांचरात्रिक विधि भागवत विधि नहीं कर सकेगा। इसका मतलब नहीं है सब लोग सेकेंड इनिशिएशन लेना है। इसका मतलब नहीं है किसको ब्राह्मण दीक्षा नहीं मिला, किसको गायत्री मंत्र, गायत्री जप नहीं मिला, वो भगवान के पास नहीं जा सकता। इसका मतलब ये नहीं है। मगर हरिनाम दीक्षित वाले कैसा पांचरात्रिक विधि को पालन कर सकता है? मैं बोला सब पांचरात्र विधि पालन करना है। कैसा पालन करना है? हमको आचमन करने के भी नहीं आता है, क्योंकि हमको कोई नहीं सीखा, हमको मंत्र नहीं आता है। हम लोग कैसा करना है? देखिए, ऑल्टर के अंदर भगवान का सेवा ब्राह्मण दीक्षित भक्त लोग कर रहा है। वो लोग बाहर आके कब शंख बजाएगा उस समय हम आ जा रहे तो हम पांचरात्र विधि पालन कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ अंदर का भक्त, not just the person, the devotee who is inside the altar, he alone is not following Pancharatra Vidhi. Even we should follow. যিনি অল্টারের মধ্যে ভগবান সেবা করছেন, ভিতরে অল্টারের ভিতরে ভগবান সেবা করছেন, উনি কেবল পঞ্চরাত্র বিধি অনুসরণ করছেন না, আপনাদেরও পঞ্চরাত্র বিধি অনুসরণ করা উচিত।
So we follow मंगल आरती समय 4:30, हम लोग 4:29 आके पर्दा का सामने हरे कृष्ण 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 हरे राम ऐसा, नहीं तो जय राधा माधव कुंजा विहारी ऐसा बोलने से हम लोग, बाहर वाले लोग भी, हरिनाम दीक्षित वाले भी, बिना हरिनाम दीक्षित वाले भी पांचरात्र विधि को पालन कर रहा है। ठीक है। सो भागवत विधि का मतलब क्या है? हरे कृष्णा महामंत्र को जप कर, वो हरे कृष्णा महामंत्र को कैसे भी कर सकते हैं, क्योंकि महाप्रभु ने लाइसेंस दिया है। वो क्या बोला है? तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन काला, कोई निर्दिष्ट डायरेक्शन, दिशा नहीं है। सुबह में भी कर सकता है, दोपहर में भी कर सकता है, रात में भी कर सकता है, बिना स्नान भी कर सकता है, स्नान करने भी कर सकता है। 1 और 2 कर रहा है हम लोग, उस समय भी बैठ के हरे कृष्णा कृष्ण सब सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर हमारा कमिटेड ग्राउंड है ना, हम लोग वचन दिया ना गुरु महाराज को, अग्नि का सामने, भगवान का सामने, वैष्णव लोग का, ब्राह्मण लोग का सामने हम लोग वचन दिया ना, मैं मिनिमम 16 राउंड्स हर रोज करूंगा। वो हम लोग विधि विधान से ही करना है। वो भी पांचरात्र जैसा होगा। ए मोबाइल फोन रख के हरे कृष्णा कृष्ण